नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट नीलेश ओझा, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन बार एसोसिएशन। इस वीडियो के माध्यम से सारे देशवासियों को, सारे मेरे भाइयों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 24 जुलाई को पूरे भारत भर में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन देश के कोने कोने में होने वाला है। ये प्रोटेस्ट जो है, ये कोरोना स्कैंडल जो है कि कैसे हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गलत तरीके से झूठे साइंटिफिक तथ्यों के आधार पे, बोगस साइंस के बेस पे ये लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन देना या अन्य जो भी गलत काम हो रहे हैं कोरोना स्कैंडल के नाम पे, इंक्लूडिंग लॉकडाउन, इसके खिलाफ में ये विरोध प्रदर्शन है। और एक सदृढ़ लोकतंत्र, हेल्दी डेमोक्रेसी का एक साइन है कि हम ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल हो। Hi, my name is Wandering Kamya, and I am a travel and spirituality influencer. And one of the things that I fundamentally believe in is the human right to choice. Under no circumstances should any human being be forced or coerced into taking a pharmaceutical intervention they do not want. I myself adopt the path of natural and holistic health and Ayurveda and have done almost my entire life and will fully stand for this. And so fully support the protests held by Awaken India movement, along with the global protests in France, England, and other countries to stand for our basic human biological right to choice and the freedom of all human beings on the planet. Thank you. Jai Shri Ram. In today's drastically changing world, democracy is becoming obsolete because of our unsuspecting attitude towards globalist colonialism that is plaguing not only the present but also the future of human existence. Tremendous scientific evidence proves that COVID has been worsened by the evil modus operandi of mass vaccinations, lockdowns, social distancing, mask mandates, etc., despite the availability of an easy solution through traditional Ayurvedic lifestyle. Truth is sadly being censored everywhere. The globalist movement has been made to coincide with the Great Conjunction in order to usher in anti-human transhumanism. Disconnection from nature via GMOs and devastating 5G technology will weaken the very foundation of human health, especially when it comes to mandatory vaccinations. Marketing poison is evil, but mandating poison is super evil. We need to voice our concerns before it is too late. We are all answerable to our own conscience. Hence, my humble request is to unite and voice our concerns on the 24th of July as organized by the Awaken India movement. Dhanyavad. Jai Shri Ram. Hi, I'm Johan Tengra. I'm the founder of Anarchy for Freedom India and one of the core team members of Awaken India movement. In the last 1.5 years, all our lives have been utterly devastated. Our business is destroyed, our careers, our jobs, our livelihoods, our education, our personal lives, everything's been destroyed, our liberties have been taken away, and we've basically been broken down by a psychopathic cult that's behind this whole agenda to enslave humanity. So, if we really want to stop this, I think it's high time we realize that it's the responsibility of us, the people who realize what's going on, to wake other people up and to start a mass movement in the country. So, I'm all in for that because I know that if we don't do this, then we're not going to have a life worth living. And we're all getting to see that more and more as time passes. So, if you agree with me, please come and join us at the 24th protest in order to stop conspiracy theories from becoming conspiracy facts. And just by the way, if we don't stop this now, you're going to beg 5 years later that 2021 came back. That's how bad it's going to get. So we are very confused and upset and angry by the government's response on the pandemic, which I would call blunder after blunder. Forcing people to get vaccinated is very, very wrong. It's constitutionally wrong. And I had the misfortune of talking to a family yesterday evening where an 18-year-old girl died after taking the vaccine, probably on account of blood clots in the brain. We don't know. We're trying to find out. But for me, this is a very worrying issue on which people in this country should look at and try and take corrective steps. Thank you, my friends. Keep on fighting for transparency.
Keep on fighting for the right to information. Do not be cowed down and stifled by people who threaten you that if you speak up, you will be punished. Stand up for human rights. 21 जुलाई 2021 को आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरे पास एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में उन्होंने अप्रूव किया नाइस प्रोटोकॉल को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू सीवियर केसेस ऑफ कोविड-19। उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन डाला कि नाइस प्रोटोकॉल से विद जीरो मेडिकेशन इवन द सीवियर कोविड पेशेंट कैन बी क्योर्ड विद इन 7 days विद जीरो मोर्टिलिटी एंड जीरो साइड इफेक्ट। उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन लिखा कि नाइस प्रोटोकॉल के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को गाना गाने दिया गया, डांस करने दिया गया, फैमिली मेंबर से मिलने दिया गया, इवन मैरिज फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करने दिया गया। इन सारे ऑब्जर्वेशन के मद्देनजर अब कोविड के रिस्ट्रिक्शन हट जाने चाहिए और अगर नहीं हटते हैं तो 24 जुलाई को कोविड के रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट होगा, आई सपोर्ट दैट प्रोटेस्ट। जय हिंद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है। आने वाली 24 तारीख को मुंबई, बेंगलोर, गुजरात, कलकत्ता और भारत के अन्य भागों में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के खिलाफ प्रदर्शन होने वाले हैं, वो प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन के साथ हैं। जय हिंद। डेट याद कर लीजिए, 24 जुलाई 2021 मुंबई में और देश के बाकी राज्यों में, गुजरात और कई जगहों पर जो है वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के विरोध में, कोरोना षड्यंत्रों को लेकर जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में भी होने जा रहा है। आप सभी उसमें शामिल होइए, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जगिए, क्योंकि अवेकन इंडिया मूवमेंट सोए हुए को जगाने के लिए है, मुर्दों के लिए नहीं। तो यदि आप अपने आप को जिंदा समझते हैं तो ज़रूर पहुंचिए और वहां पर जाकर अवेकन होइए, जागृत होइए, जिससे कि देश की आने वाली पीढ़ियों को इस षड्यंत्र से बचाया जा सके। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद। 24 जुलाई को पूरे विश्व में जगह जगह इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और पैंडेमिक कोरोना के खिलाफ होने वाले हैं प्रोटेस्ट। पूरे विश्व में करोड़ों लोग हैं इन प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार। क्या आप भी हैं तैयार? बड़े खुशी की बात है और सुकून की बात है कि इस देश में कम से कम कुछ लोग ये काम करने जा रहे हैं जो सरकार हमारी जो है, देखिए संविधान जो है उसका पालन करना सबसे पहली जिम्मेदारी अगर किसी की है तो देश की सत्ता की, सरकार की है। वो किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। अगर कोई भी सरकार संविधान के प्रावधानों के विपरीत, अदालत के प्रावधानों के विपरीत कोई आदेश देती है, किसी तरह की मेडिकल जांच करती है, किसी तरह का कोई भी मेडिकेटेड चीज़ आपके शरीर में इंसर्ट करती है, आपकी इजाज़त के बगैर अगर कोई आपका ऑपरेशन करता है, तो ये जो है वो गलत है, गुनाह है, अपराध है। और इस अपराध के खिलाफ मैं हमेशा वीडियो बना बना के आवाज़ उठाता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये पता चला है कि कुछ लोग जो है वो ज़बरदस्ती किसी प्रकार के टीकाकरण के खिलाफ अब सड़कों पर आ रहे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई टीकाकरण होना चाहिए तो ऐच्छिक होना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती नहीं कर। सरकार बोल तो रही है ऐच्छिक होना चाहिए, लेकिन वो काम जो है ज़बरदस्ती कर रही है। 50 जगह पे सरकारी आदेश निकाले गए हैं, रिकॉर्ड में है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी शुभकामनाएं जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सफल हों। कम से कम इस देश में जो आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को जो आज़ादी मिली हुई है, उस आज़ादी का सम्मान हो। और दूसरी बात ये भी है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको बदलने का अधिकार किसी को नहीं है। संसद 2/3 बहुमत से भी जो संविधान संशोधन कर सकती है, वो भी संविधान के दायरे में रह के कर सकती है, संविधान के मूल स्वरूप से खिलवाड़ नहीं कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से अब हाल में कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। उम्मीद करता हूं कि इन प्रदर्शनों से कुछ सरकार प्रेरणा लेगी और लोगों की आज़ादी का ख्याल रखेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज जो आया हूँ मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। 24 जुलाई 2021 को दादर, मुंबई प्रोटेस्ट जो है भारत बचाओ दुनिया बचाओ, जो पूरी दुनिया में 24 जुलाई को प्रोटेस्ट होने वाला है, उसी में भारत कंट्रीब्यूट करने वाला है और पूरे भारत में प्रोटेस्ट होने वाला है। और सभी नियमों का पालन करते हुए
जैसे हमारे मोदी साहब करते हैं, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं, जैसे फडणवीस साहब करते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे साहब करते हैं, जैसे शरद पवार साहब करते हैं और उस तरह से सभा लेते हैं, उस तरह से आंदोलन करते हैं, उसी तरह से हम भी सभी सरकारी आदेशों का हम पालन करेंगे और आंदोलन करेंगे। सब प्रोटेस्ट, महाराष्ट्र का प्रोटेस्ट वहाँ है, अपने अपने स्टेट्स का अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट है। अवेकन इंडिया मूवमेंट के टेलीग्राम ग्रुप पे आप वहाँ पे कम्युनिकेट कीजिए, आपके स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है उसके बारे में जानकारी लीजिए और सरकारी सभी नियमों का पालन करते हुए हमें वो प्रोटेस्ट करना है। मैसेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस समर्थ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इस पेंडेमिक कोविड के अगेंस्ट में हम लोग आने वाले 24 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेनली ये प्रोटेस्ट मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, गुजरात और इसके अलावा देश के अन्य शहरों में भी होगा। पूरे वर्ल्ड में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस दिन घरों से बाहर निकलें और इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। 24 तारीख मत भूलिए। आपका धंधा जो है पिछले 15-16 महीने में पूरा चौपट हो गया और इन लोगों ने आपको अटक अटक के मारा है। आपके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से ये कभी चालू कभी बंद, ना दुकान बंद कर सके ना आप उसका कुछ ये कर सके। किसानों के बारे में भी ऐसी हुआ है। सारा खेती जो है चौपट हो गई है। ये इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताता हूं, दुकानें इसलिए बंद करी जा रही है या इस तरीके से आपको बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों को मॉल की संस्कृति लानी है। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के मॉल जो है ये देश के अंदर खोलना है इनको, और मॉल अगर ये भारत के अंदर चलाना है तो इन लोगों को, ये जो छोटे दुकानदार है आपके जैसे कि जो लोगों को पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं, इन लोगों को मारे सिवा, आपको मारे सिवा इन लोगों के मॉल चलने वाले नहीं है। तो इसीलिए पहले आपको बर्बाद करो, यही इनका असली मकसद है। और अगर ये आपके ध्यान में आया होगा तो मेरा ये कहना है कि 24 तारीख को ये बिल्कुल मत छोड़िए, रास्ते पे निकलिए। ऐसा है कि ऑलरेडी जो बर्बाद होना था वो तो हो चुके हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से आप चुप बैठे तो मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर आप कभी उभर नहीं सकेंगे और जो भी आपके हाथ में अभी फिलहाल में है ये सारा का सारा निकल जाएगा और आप बिल्कुल धरे के धरे देखते रहेंगे। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। ये जो वैक्सीनेशन के खिलाफ में जो ड्राइव खोला है उसके बाद में ये मास्क के बारे में, जबकि ये दुनिया के अंदर बोला जाता है कि मास्क जरूरी नहीं है, वैक्सीन भी कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट जो है ये बहुत अलग अलग तरीके से लोगों को प्रेशराइज कर रही है। तो इसके बारे में जागृति करने के लिए 24 तारीख को सब मिलके, सब साथ मिलके हमको इसका विरोध करना है। करना कुछ नहीं है, आइए गांधी जी और पार्क के अंदर आइए या मुंबई जाइए या पूरे दुनिया देश के अंदर जहां भी आपको जाना है वो आप जा सकते हो। कई सिटीज है जिसके अंदर इस तरीके से वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन का काम हो रहा है। इसके बारे में कोर्ट के अंदर भी PIL डाली जा रही है। तो जहां आपको पॉसिबल है, अकोला के अंदर मैं 24 तारीख को गांधी जी और पार्क से निकलने वाला और कलेक्टर को जाके निवेदन देने वाला हूं। हमको शांतिपूर्ण मार्ग करना है और जाके हमारी जो बातें हैं वो सरकार के सामने रखिए। तो मैं समझता हूं कि आप ये मौका बिल्कुल नहीं खोएंगे। नमस्कार। This is a call for people who love their freedom. There are going to be protests happening in some parts of India like Mumbai, Bangalore, Jaipur, Kolkata, etc. and in the world on 24th July against the agenda that has been imposed on us and the fake pandemic. I'm going to be attending one of those. I hope you guys will too, because this is not about you and me, this is about us. नमस्कार, मेरा नाम कपिल बजाज है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। शनिवार 24 जुलाई को पूरी दुनिया में कोरोना फेक पैंडेमिक, कोरोना फर्जी महामारी के खिलाफ, जहरीले इंजेक्शनों के खिलाफ और कोरोना के पीछे जो एक शैतानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा चल रहा है जिसके तहत पूरी दुनिया से लोकतंत्र का विनाश किया जा रहा है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और पिछले साल से ऐसे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, भारत में भी चल रहे हैं। भारत में भी एक आंदोलन चल रहा है। तो 24 फरवरी को भारत में भी ये विरोध प्रदर्शन होंगे बहुत सारे शहरों में। तो आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इन विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लीजिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, शनिवार 24 जुलाई को। और अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट एक संगठन है जो
बहुत सारे शहरों में ये विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप वहाँ जाके हिस्सा लीजिए। यदि आपको जानकारी नहीं मिल पाती तो आप अपनी सतह पे भी विरोध प्रदर्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। किसी पब्लिक प्लेस में लोगों को इकट्ठा कीजिए और वहाँ पे आप अपना रोष व्यक्त कीजिए। और कोई पब्लिक प्लेस नहीं मिलता तो आप किसी प्राइवेट प्लेस में भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि शनिवार 24 जुलाई को आपको लोकतंत्र को बचाने के लिए कोरोना फ्रॉड के खिलाफ, जहरीले टीकों के खिलाफ और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा के खिलाफ आपको विरोध प्रदर्शन करना है। ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद। The financial, mental and physical health repercussions of the past year and a half have been devastating and irreversible, to say the least. People all around the world are standing up for their freedoms, but sadly we don't hear about it because the media is controlled. So if you are pro-choice and you want to be able to decide when you can keep your business open or what you put inside your body, and if you don't want your life to be dictated by these irreliable false positive tests and these unjust mandates, join the movement with us on the 24th of July, which is this Saturday, and let's together stand up for our freedom, stand up for truth, and because once our freedoms are taken away, it's very tough to get them back. Stand up against the propaganda of fear. Stand up for the sufferers of the draconian restrictions. Stand up against the global reset of our planet. Stand up for love. Stand up for your freedom. The worldwide demonstrations are finally happening in India on 24th July. I hope to see you all there. Stand up, India. पिछले एक साल से एक इमेजिनरी वायरस के नाम पे जो ये मास्क, डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन, लॉकडाउन्स, वैक्सीनेशंस लेके आई जा रही हैं, ये हमें बहुत ही बीमार और गुलाम करने की साजिश है। आई होप आप सबको ये बात अब तक समझ आ चुकी होगी। तो जिन जिन को इस बात के बारे में पता लग चुका है, अब वो सारे लोग 24 जुलाई को सड़कों पे आके इस फर्जी महामारी का विरोध करने वाले हैं। भारत के अंदर दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे और अन्य शहरों में ये होएगा। और मैं कनाडा में रहता हूँ, यहाँ पे भी टोरंटो में ये प्रोटेस्ट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि अगर हम अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। कीप फाइटिंग फॉर ट्रूथ, फ्रीडम एंड हेल्थ। थैंक यू सो मच। 24 जुलाई को दोस्तों इस दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऑलरेडी बहुत महीनों से चल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ज़्यादा बताती नहीं है। 24 जुलाई को इंडिया में बहुत सारे शहरों में, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर और भी बहुत सारे शहरों में ये प्रोटेस्ट पीसफुल मार्च प्लान हुआ है। अवेकन इंडिया मूवमेंट, एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप जाओ उसको फॉलो करो, अवेकन इंडिया मूवमेंट, और उन लोगों ने प्लान किया है। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, मैं भी हूँ, और बहुत सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बहुत लोग आपस में इकट्ठे हुए हैं हम लोग इस चीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि अभी आने वाला जो है वो बहुत ही बुरा है दोस्तों। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बचेगा नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत बर्बादी होनी है अभी। तो उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैंडेटरी वैक्सीन्स, मैंडेटरी मास्क, मैंडेटरी लॉकडाउन्स, इन सब के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट प्लान हुआ है। तो आप सब लोग आपके शहरों में जहां आप जा सकते हैं, प्लीज़ आइए और सच को जानिए। और आप सच को जान पाएंगे अगर आप आएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत नॉलेजेबल लोग आपको मिलेंगे प्रोटेस्ट में, जो आपको बहुत सारे झूठों का पर्दाफाश करेंगे। प्यारे देशवासियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी, हम लोगों ने इस फर्जी कोरोना महामारी के खिलाफ 18 जुलाई 2021 को दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया है। मास्क के खिलाफ, सोशल डिस्टेंस के खिलाफ, लॉकडाउन के खिलाफ, आवश्यक एवं जबरदस्ती वैक्सीनेशन के खिलाफ आगामी 25 जुलाई 2021 को देश के दूसरे शहरों में यह आंदोलन फिर से होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश को गुलामी से बचाने के लिए एवं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के शैतानिक एजेंडे से बचाने के लिए आप सब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले एवं आंदोलनकारियों का पूरा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।
पिछले 1-1.5 साल से इस महामारी के नाम पे हमसे बहुत सारी चीजें करवाई गई, बहुत सारे झूठ बोले गए, तालियां बजवाई गई, थालियां बजवाई गई, दिए जलाए गए, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन आज तक उसका कुछ भी सोल्यूशन निकला नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो अभी भी रास्ते पे हैं, बेरोजगार हैं, इतना तड़प रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिल रही है, कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन हमें दिख नहीं रहा है और ऊपर से 3rd वेव 4th वेव ये चलते ही जा रहा है। तो अब बस हो गया, अभी हमें उठ के आवाज उठानी पड़ेगी हमारी, उनको बोलना पड़ेगा दैट ये लॉकडाउन, ये मास्क, ये प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें अभी बंद करें। 24 जुलाई को हमारे साथ जुड़िए इस प्रोटेस्ट के अंदर, इन सारी चीजों के खिलाफ, एंड आवाज उठाइए। Say no to the new normal. Stand up against unscientific methods that control your lives and livelihoods. Stand up for the only time in your life where standing up truly matters. Join the worldwide protest on the 24th of July and stand up to leave the world a better place than the one that you found. Where's this heading, guys? It's honestly been 15 days to flatten the curve to a year and a half, and the lockdowns are just now getting over. I think it's high time the government let people decide what their fate of their health should be, and rather than enforcing people to stay at home, because the lockdowns don't work, guys. It's been proven. The cases keep rising, the lockdowns don't work, and people are falling sick just sitting in their house. So it's high time that we end the lockdowns and not make vaccines compulsory like it's being pushed at different places, even though it's an experimental vaccine. It's not been approved at all. So please end the lockdown and say no to mandatory vaccinations and my body, my choice. So friends, finally अब वो टाइम आ गया है कि हम स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड होके स्टैंड ले। हम हमारे फ्रीडम के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम स्टैंड ले। 24 जुलाई को वर्ल्ड वाइड रैली होने वाली है। अराउंड 100 सिटीज में पूरे वर्ल्ड में ये रैली होने वाली है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी अपना पावरफुल प्रेजेंस शो कर सकते हैं। जितना पावरफुल हमारा प्रेजेंस होगा उतना पावरफुल मैसेज हम पूरे वर्ल्ड में सेंड कर सकते हैं। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर होने के साथ एक माँ हूँ और एक इंसान हूँ। मुझे अपनी आज़ादी प्यारी है, अपने देश में आज़ादी से घूमना प्यारा है। क्यों मुझे वैक्सीनेशन लेने के लिए मजबूर किया जाए अगर मुझे कहीं घूमना है? क्यों मैं अपने घर के सामने एक पार्क में घूमने नहीं जा सकती? क्यों मैं समुद्र के किनारे नहीं घूम सकती? क्यों वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों पर जोर जबरदस्ती की जा रही है? ये मेरा शरीर है और इसके अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं, ये मेरी चॉइस है। मुझे फोर्स नहीं कर सकता कोई, किसी को ये हक नहीं है। मेरी आजादी, ये मेरा हक है। बोलने की आजादी, घूमने की आजादी, सांस लेने की आजादी। नहीं लगाऊंगी मैं मास्क, नहीं लूंगी मैं वैक्सीनेशन। मैं इस 24 तारीख के प्रोटेस्ट में, जो ग्लोबल प्रोटेस्ट है, दुनिया के हर कोने में हो रहा है, जरूर हिस्सा लूंगी। और मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दोबारा पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, आप अपने कमा सकें। लॉकडाउन की वजह से 1.5 साल से लोगों की कमाई बंद हो गई है, भूखे मर रहे हैं लोग, अपने सेविंग्स में से यूज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको 24 तारीख के इस लॉकडाउन के प्रोटेस्ट में जरूर आना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। थैंक यू। This is Daryl D'Souza from Goa, and if like me over the last year you have clearly understood that this is not some pandemic but a global scam, a war by globalists against the common man's health, rights, liberty and life, then come out on the streets on 24th July with your friends and rally like many cities across India and the globe are doing, and tell your government to stand up and fight this tyranny. Do this much at least if you want any kind of a future worth living. हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज है और मैं मुंबई से हूँ। 24 जुलाई को होने वाले प्रोटेस्ट में मैं चाहता हूँ कि सभी भारत के शहर के लोग शामिल हो। जो प्रोटेस्ट है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा 21 को रोकने के लिए है। तो मेरा अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि 24 तारीख को आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुइए, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है ये वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट होने वाला है, पूरी दुनिया में होगा। भारत में हो रहे असंवैधानिक लॉकडाउन्स, 5G जैसी टेक्नोलॉजी का बिना ट्रायल्स के इंट्रोड्यूस होना,
कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर आने वाली 24 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के अनेक शहरों में बड़े प्रोटेस्ट होने वाले हैं। तो मैं आज आपको सादर आमंत्रित करता हूं 24 जुलाई को कि आप अपने शहर में इस मानव चेतना की जागृति के त्योहार में जरूर आएं। हम आपका वहां इंतजार करेंगे और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर भारद्वाज शर्मा है और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। कोरोना नाम की महामारी का नाम लेकर हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा चुका है। गरीब इंसान सड़क पे आ चुका है और इसी के खिलाफ 24 जुलाई को देश के अलग अलग जगह पे एक फ्रीडम मार्च निकाले जाने वाला है। और मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूं कि मैंडेटरी टीकाकरण के खिलाफ, मैंडेटरी लॉकडाउन्स के खिलाफ आप अपना कदम उठाएं और उस फ्रीडम मार्च में पहुंचे। Hi, my name is Pratham Pado and I'm the host of the Labyrinth podcast. Are you fed up of the unscientific lockdowns, mandatory masks, and vaccine passports? Are you concerned about the side effects of experimental vaccines? If yes, let's get together. Let's join the worldwide protest on 24th of this July. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ 24ನೇ ಜುಲೈನಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you. फ्रांस और यूके ने जो भी वैक्सीन नहीं लिया है उसको होटल में जाने को नहीं मिलेगा, शॉपिंग मॉल, दुकान नहीं मिलेगा। और अगर वो होटल में गया और उसने वैक्सीन नहीं लिया रहेगा तो जो होटल वाला है उसको लाखों डॉलर का फाइन लगेगा और जो बिना वैक्सीन लिए होटल में गया उसको 6 महीने का जेल और बहुत बड़ा फाइन। ये फ्रांस और यूके में हुआ, ये इंडिया में भी होगा। कुछ दिनों बाद मोदी आएगा, बोलेगा जो वैक्सीन नहीं लिया वो होटल में नहीं जा सकता। ये सब जगह एक ही रूल होने वाला है। इसीलिए 24 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट है मुंबई में, दादर में, सबको आना है। ज़्यादा नंबर्स चाहिए। अगर नंबर्स नहीं रहेंगे, सरकार को दिखाना है, हुल देना है कि विरोध होगा। अगर विरोध नहीं किया तो ये लागू होगा। बिना इंजेक्शन लिए किधर भी जा नहीं सकते, ना ट्रेन में चढ़ सकते, ना मॉल में जा सकते। इसीलिए 24 जुलाई को सबको दादर में आना ही पड़ेगा टू शो अवर स्ट्रेंथ और अपना नंबर्स दिखाना पड़ेगा ताकि सरकार पे प्रेशर पड़े, ये नियम लागू ना हो।